दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 मेंसुरेशन पर आधारित है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद। 11.3 mensuration, that is, here is most important question number 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. तो यहाँ पे three things is given. One things is total number of revolution, that is 750, and the diameter of road roller, that is 84 centimeter. And if diameter is given, then we can find the radius of the road roller. This is diameter divided by 2, means 84 divided by 2, this is 42 centimeter. But here is the most important point. Note it that one measurement is given into the centimeter and second one is given into the meter. So what to do for this? We will convert all the measurement in the same unit. So we will write here length of the road roller equal to 1 meter, that is 100 centimeter, because we know that 1 meter equal to 100 centimeter. So we will write all the measurement into the same unit. Now how can you find the area labeled by the road roller? So dear, you know that this wheel area labeled by road roller only by this wheel which you see just in the front of the road roller, and this wheel is into the shape of cylinder. So how many area labeled by this cylinder in one revolution means just equal to the surface area of the road roller. So we will write here now the area labeled by road roller in one revolution equal to the surface area of the road roller, that is surface area of the cylinder. So what is the surface area of cylinder? You know very well that surface area of cylinder is 2 pi r h, 2 pi r h, and here you can see that this is radius and this is length of the road roller, means this is the height of cylinder. So dear, now we will put all the values here. 2 pi means 22 by 7 and r means 42 centimeter and h means how much? This is 100 centimeter. So now put all the values here and simplify it. So first of all, you can see that this 2 7 is cancelled by this 42. 42 6 ja 7 6 ja 42. After that, this is how much? We can say that it is 22 into 2. This is how much? 44, and into 6 and then into 100, and the unit of area centimeter square. So in the one revolution road roller leveled the area. This is how much? Yes, 6 4 ja 24 and 6 4 ja 24 and carry 2, that is 26 and double 0 centimeter square. And here you can change this centimeter distance, that's area, into the meter by dividing how much? You will divide this 26400 and it is divided by how, which? 100 into 100. Why 100 into 100? Because this centimeter is written as cm into cm. Okay, and 1 cm equal to 100. You will divide, for converting this cm, dividing by 100, and again this cm you will divide by
100. So what you will get? You will get this is total divided by 10,000, and after that you can observe that this 0 and 0 cancelled out, this 0 and 0 cancelled out, and it is how much? This is 264 divided by 100 meter square. Okay, and this is also written as 2 point, या फिर इतना ही रहने दीजिए. अब आपको क्या करना है? आफ्टर दैट दिस स्टेप वी विल फाइंड द एरिया लेवल्ड बाय 750 रेवोल्यूशन. नाउ एरिया लेवल्ड by road roller equal to area labeled by road roller in 750 revolution. कितने में पता करना है? in 750 revolution. So dear, this is 750 into this area which you find just now, that is 2640 divided by 100 meter square. So after this you simplify once again. So dear, it is 0 and 0, this once again cancel. Now multiplication of 264 into 75. So what you will get? You will get the total multiplication of this, that is 1980 meter square. 1980 meter square. Okay, so I think that this is the answer and all the steps here are clear. तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जो गिवन था वो लिख लिया. गिवन के बाद हमने ये पता किया कि एक चक्कर में रोड रोलर कितना एरिया कवर करेगा. तो वो उतना ही एरिया कवर करेगा जितना सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा. तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना है? आपको पता है 2πr/h होता है. तो यहाँ वैल्यू पुट किया हमने, तो हमको मिल गया जो एक चक्कर में रेवोल्यूशन, एक चक्कर में जो हमें एरिया लेवल मिला, दैट इज हाउ मच? दिस इज 264/100 मीटर स्क्वायर. अब हमें 750 में चाहिए तो हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब हम 750 से मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 1980 meter square. Now dear, moving for next exercise, that is exercise 11.4. So exercise 11.4, here is given some things. In the question number 1, given a cylindrical tank in which situation, आप देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, given a cylindrical tank in which situation will you find surface area and in which situation volume. तो देखिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, सरफेस एरिया आपका होता है, सरफेस एरिया मीन्स अमाउंट ऑफ स्पेस. अमाउंट ऑफ क्या होता है? अमाउंट ऑफ रीजन. ये तो होता है सरफेस एरिया. और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्पेस. मीन्स रीजन का मतलब क्या है कि वहाँ पे कितनी जगह, कितना क्षेत्र है, ठीक है, कितना उसका सरफेस है. और स्पेस का मतलब क्या है? उसके अंदर कितनी जगह पड़ी हुई है. तो ये चीज़ हो गई. तो अब आप देखो कि ये क्लियर हुआ स्टेप कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई. यहाँ पे जो स्पेस होता है, जैसे आपका वाटर बॉटल है तो वाटर बॉटल में कितना पानी आएगा?
तो जितना स्पेस होगा उतना ही पानी आएगा, तो वो वॉल्यूम होता है। और सरफेस एरिया क्या होता है, वाटर बोतल किस शेप की बनी हुई है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या, जो आपको बाहर से दिखाई पड़ रही है वो सरफेस एरिया होता है, तो उसको हम रीजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब इसमें कितना भरा जा सकता है। तो आप क्या पता करेंगे इसके लिए, वॉल्यूम। क्लियर है ना, इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूम। इसके लिए वॉल्यूम पता करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो देखो प्लास्टर कहाँ पर होता है, रीजन में होता है, सरफेस पर होता है, तो इसके लिए हम क्या पता करेंगे, सरफेस एरिया। इसका आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट पार्ट है वो आपका क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो देखो पानी जिसमें भरा जाना है, तो इसका मतलब आप क्या पता करेंगे, वॉल्यूम। यहाँ पे हमें पता करना है वॉल्यूम, इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम। तो क्लियर हो गया, आई थिंक दैट। तो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर आपको पता चल गया, क्या हुआ, वॉल्यूम। इसके बाद बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। और सी पार्ट का आंसर भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो इस तरह से ये कुछ, पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए ये सिलेंडर है और बी ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, अब आपका बी सिलेंडर ये है, तो इसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर, बिना ही किसी कैलकुलेशन के आप बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम बोथ सिलेंडर, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। इसके बाद ये भी बताना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको ओरल ही बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आप अभी बताओगे कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा किसका होगा। सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखिए रेडियस क्या होता है, रेडियस का यहाँ पे आप ध्यान से समझिए और अपना दिमाग लगाइए, रेडियस का स्क्वायर हो रहा है और हाइट सिंपली मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर हम बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट बड़ा मिलेगा, अगर हम छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट छोटा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब r की जगह आप ये डायमीटर लेंगे 14, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बिना कैलकुलेशन के पता चल गया कि क्योंकि r का आप स्क्वायर करते हैं तो आप लिखेंगे वॉल्यूम सिलेंडर बी हैव ग्रेटर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस बी सिलेंडर का ज़्यादा है तो फिर इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा। अब आपको कैलकुलेशन भी करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 फॉर सिलेंडर ए।
ए सिलेंडर के लिए आप देखिए क्या क्या गिवन है। डायमीटर तो दिया हुआ है 7 cm। तो रेडियस कितना हो जाएगा आप बता सकते हो, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 7/2 cm हो जाएगा। ठीक है। और हाइट इसका देखिए कितना दिया है, ये हाइट है इसका 14। तो आप यहाँ पे हाइट लिख दीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर आप पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हाइट ही लिखने से काम हो जाएगा। हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रेडियस को किससे लिखते हैं हम लोग, आर से, और हाइट को किससे लिखते हैं, एच से। तो अब आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, this is pi r square h, this is the formula. Now you substitute all the values here। आप वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर अभी आपको पता चला ये आर है, तो आर का वैल्यू कितना है 7/2, और उसका क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स लिख देते हैं। और हाइट कितनी है 14 है, तो हाइट को 14 लिख दिया। ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखो यहाँ पे 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है। और ये 2 से ये 22 भी कट गया, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 आ गया। ठीक है। तो अब आपके पास बचा क्या है 11 × 7 × 7, और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा 11 × 7 कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बताओ इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आपका, चूँकि 11 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को 49 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा कितना होता है, 11 9 जा होता है 99। तो टोटल आ जाएगा ये 539, मल्टीप्लाई करके देखिए 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब चलिए इसी सिलेंडर का पहले सरफेस एरिया भी पता कर लेते हैं। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। तो ये वैल्यू आप पुट करिए फिर से। तो देखिए क्या क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे 2 तो 2 है, पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7, आर की जगह आपका 7/2 होगा, एच की जगह आप 14 लिखेंगे। तो फिर से देखिए कुछ यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 7 भी कैंसिल। आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 22 × 14। तो कितना आंसर आएगा ये 14 2 जा कितना होता है 28, और 14 2 जा 28 फिर से, तो कैरी 2 है 30 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ए। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोगों ने इसकी पता कर ली। अब हम बढ़ते हैं सिलेंडर बी के लिए। तो देखिए सिलेंडर बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका है सिलेंडर बी। तो इस सिलेंडर बी में आप ये बताइए फॉर सिलेंडर बी आप बताइए कि इसमें रेडियस कितना होगा और हाइट कितनी हो जाएगी। तो सिंपली रेडियस इसका हो जाएगा, पहले डायमीटर लिखिए, डायमीटर
ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर आपने लिख ही दिया है तो नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, कितना है 14 सेंटीमीटर। आप देखिए ये कितना दिया है, 14 दिया है ना, दिस इज़ 14, तो यहाँ पे 14 cm लिख दिया। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है ना, 14/2, तो ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आप देख लो यहाँ दे रखी है ये 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस और डायमीटर दोनों सेम हो गया। अब आप देखें सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, तो आइए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ये आपका हमने ले लिया रेडियस मीन्स स्मॉल आर ले लिया और ये स्मॉल एच ले लिया, ठीक है। वो फॉर्मूला वही रहेगा πr²h। तो आप देखो पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप 2 बार लिखोगे 7 × 7, और एच भी यहाँ 7 ही है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचेगा क्या, 22 × 49 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22 को जब आप 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, ये आपका हो जाएगा 1078, 1078, और ये यूनिट आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सिलेंडर। तो ये आपको आंसर मिल गया वॉल्यूम का। अब इसी का सरफेस एरिया भी पता करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, तो फॉर्मूला क्या है इसका, वही सेम 2πr/h। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इतना ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर की जगह भी 7 लिखेंगे, एच की जगह भी 7 ही लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो रहा है ये, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 2 × 22 कितना हो गया, 44 × 7, और इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से समझिए कि ये 44 × 7 कितना हो जाएगा, 44 × 7 आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपका आंसर आ जाएगा 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28 अगेन, तो 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, तो आप देखो यहाँ पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब आपने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए फाइंड किया था, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे आपने रेडियस लिखा था 22 × 14, तो कितना आया ये 308 ही आया, और यहाँ भी सरफेस एरिया कितना आया 308 ही आया। तो सरफेस एरिया दोनों का सेम आ गया, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे 539 है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1078। तो आप फाइनली लिखिए पहले यहाँ पे एक साथ, सिलेंडर वॉल्यूम, यहाँ पे लिखिएगा सिलेंडर ए, सिलेंडर बी, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से, सिलेंडर ए और यहाँ पे लिखेंगे सिलेंडर बी। तो इसका वॉल्यूम कितना आया है, इसका वॉल्यूम आया आपका सिलेंडर ए का
539 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना आया? इसका वॉल्यूम आया था 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखेंगे कि इसका सरफेस एरिया कितना आया। तो इसका सरफेस एरिया आया था, सरफेस एरिया इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका भी सरफेस एरिया कितना आया? इसका सरफेस एरिया भी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बताएं, आपसे पूछा गया था किसका सरफेस एरिया किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो सिंस 1078 सेंटीमीटर क्यूब इज़ ग्रेटर देन 539 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये किसका एरिया है, वॉल्यूम है? सिलेंडर बी का। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ठीक है। और फिर आपसे और क्या पूछा गया था? आपसे सरफेस एरिया, चेक वेदर, आप देखिए यहाँ पे, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो आंसर होगा नो। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा निकला उसका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है, तो आपका आंसर होगा नो। नो, सरफेस एरिया इज नॉट ग्रेटर, सरफेस एरिया इज नॉट ग्रेटर। सरफेस एरिया तो दोनों का सेम ही हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, यू कैन ऑब्जर्व दैट फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर दोनों चीज़ें आपको दी हैं तो आप फिर कैसे पता करोगे? बहुत आसानी से पता कर सकते हो। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, आपको पता क्या करना है, हाइट, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड करना है। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क, ओके। और हमने इसको h ले लिया, लेट इट इज h। अब आपको सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया आप लिख लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज गिवन दैट 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया है, तो क्लियर यहाँ पे यूनिट लिखी है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको हाइट चाहिए, तो देखो सरफेस एरिया जो होता है वॉल्यूम का, वो क्या होता है पता है? सरफेस एरिया जो होता है वो आपका कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच, दिस इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बेस एरिया दिया है सिलेंडर का, क्या दिया है, केवल बेस एरिया, मींस एक उसमें सर्व जो क्यूबॉइड होता है उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, उसमें बॉटम बेस का ये एरिया दिया है। बॉटम का मतलब वहाँ पे केवल लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह आपको यहाँ पे दिया हुआ है 180, तो इसकी जगह ये इसको आप क्या कहेंगे, बेस एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कहेंगे, बेस इंटू हाइट, एच आपकी क्या हो जाएगी, हाइट, इक्वल टू आपको दिया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो बेस है ना, इस बेस को क्या कहेंगे, बेस एरिया, नॉट ओनली बेस, यहाँ पे इसको कहेंगे बेस एरिया। ये आपका बेस एरिया है, एरिया। ठीक है। तो बेस एरिया आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है,
दिस इज गिवन दैट 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू हाइट, हाइट तो आपको पता ही करनी है, दिस इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये क्यूब है। तो आप देखो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, हाइट इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दीजिए, आप क्या करेंगे, ये 180 को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, इनटू में है तो इधर आएगा, तो ये किस में आएगा, डिवाइड में। तो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है 900 डिवाइड बाई 180। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो केवल यहाँ पे अब बचेगा सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 बन जा 18 होता है, 18 5 जा 90 होता है। तो यहाँ पे जो हाइट आ गई इस क्यूबॉइड की, वो हाइट होगी 5 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच का ये वाला फॉर्मूला लगाया और उसमें आपको अच्छे से पता है L इंटू बी क्या होता है, बेस एरिया होता है। तो ये बेस एरिया आपने यहाँ पे लिख दिया और बेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ था 180 आपने जैसे पुट किया, ट्रांसपोज किया, तो आपको हाइट मिल गई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना आसान है, ये भी उतना ही आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे दो क्यूब, एक तो क्यूबॉइड दिया है, दूसरा क्यूब दिया है, तो दोनों का आपको क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है। तो आप यहाँ वॉल्यूम पता कीजिए, ठीक है। वॉल्यूम पता करेंगे तो देखिए क्या क्या मिलने वाला है आपको। यस ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन हियर फॉर क्यूबॉइड, इट इज L इक्वल टू, आप देखो ये दिया है 60 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, L इक्वल टू कितना दिया था 60 सेंटीमीटर, तो 60 तो हमने लिखा नहीं, 60 सेंटीमीटर। B आपको कितना दिया है 54 सेंटीमीटर और H कितना दिया है, H इज गिवन दैट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यूब के लिए क्या दिया है, क्यूब यहाँ पे दिया है, उसकी साइड आपको दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो दोनों का पहले आप वॉल्यूम पता करो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है 60, B कितना है 54 और C कितना है 30 और वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। अब आप फाइंड कीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हैं क्या होता है, साइड क्यूब, S क्यूब होता है फॉर्मूला, साइड क्यूब। तो साइड यहाँ पे कितनी दे रखी है 6 का होल क्यूब और वॉल्यूम है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पे ये पता करना था कि कितने, ये बड़ा बॉक्स है जिसका वॉल्यूम आपने अभी पता किया, ये बड़ा बॉक्स है और ये छोटे छोटे उसमें से वो क्यूब रखे जाने हैं, तो कितने क्यूब आप इसमें रख पाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, है ना, नंबर ऑफ क्यूब्स
नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ क्यूब्स, सिंपली आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। इंटू सबसे पहले 60 था, 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल। और यहाँ पे आप देखो 6 5 जा 30 और 6 9 जा कितना होता है 54 और 6 10 जा 60। तो आप यहाँ पे 9 5 जा कर लीजिए, कितना होता है 9 5 जा 45 होता है, और ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 45 कितना हो जाएगा 450। तो 450 क्यूब उस में रखे जा सकते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 450। 450 नंबर ऑफ क्यूब उसमें आप पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान ही है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो मीटर क्यूब, और तो देखो सबसे पहले तो गिवन आप लिखो, गिवन में क्या क्या है, हियर इज गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस इज 1.54 मीटर क्यूब। अब आप देखो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सभी सेंटीमीटर में हो या सभी मीटर में हो, तो हमने इसको क्या कर लिया 1.54 है, तो मीटर क्यूब का मतलब समझते हैं आप, मीटर क्यूब का मतलब ये आपका हो जाएगा 1.54 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो कितने बार मीटर हो गया 3 टाइम्स, और 1 मीटर इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ आएगा 100, इसकी जगह पे मीटर की जगह 100 आ गया, और इस मीटर की जगह भी 100 आ जाएगा। तो ये 3 बार 100 100 हो गया। अब ये आप देखो इस 100 से तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 154, और ये 200 बचेंगे, तो इसकी जगह आप 40 पुट कर दीजिए। अब ये हो गया सेंटी। डायमीटर ऑफ बेस इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ बेस दिस इज गिवन दैट 140 सेंटीमीटर। अब आपको अच्छे से पता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखो यहाँ पे ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है और ये आपका डायमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी यहाँ से हो जाएगी, रेडियस आप यहाँ से फाइंड करोगे तो रेडियस हो जाएगी 140 डिवाइड बाई 2, तो कितनी आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस का मतलब आर, ठीक है। और यहाँ पे भी आप कैपिटल आर लिख सकते हो। एच आपको पता करनी है ना, तो एच आपको पता करनी है
तो H हम पता करेंगे। अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये है 154 एंड 40 इक्वल टू पाई मीन्स 22/7 और आर मीन्स अभी अभी आपने पता किया 70 और उसका भी क्या करना है स्क्वायर, तो आप 2 बार 70 लिखेंगे इंटू एच आपको फाइंड करना है। तो एच फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे इंटू एच सेम टू सेम लिख दीजिए। अब आप देखो कि 7 से 7 आसानी से कैंसिल हो गया, 7 10 जा 70 और बाकी चीज़ को यहाँ देखिए ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो भी कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट में आपके पास क्या बच्चा 7 और 22, इसे ट्रांसपोज कर दो तो हाइट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, देयरफॉर वी विल गेट हाइट इक्वल टू 154 एंड 00 डिवाइड बाई 22 और ये 7 बचेगा, ये 22 और ये वाला 7, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इनटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 इंटू 7। ठीक है, अब इसे भी कैंसिल कर लीजिए, आप देखिए आसानी से कैंसिल हो रहा है। 22 7 जा 154 होता है, तो आप सीधा कैंसिल कर सकते हो 154 बन जा, या फिर ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कैंसिल करिए। फिर से मैं बता देता हूँ 7 2 जा 14 और 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब आप देखो 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया, 22 से ये 22 भी कैंसिल हो गया, बन जा केवल 1 टाइम्स और ये 2 जीरो बचे हुए हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 1 एंड 00, तो हाइट हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर दिस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और दिस इज 1 मीटर। तो ये आपका 1 मीटर जो आ गया h इक्वल टू 1 मीटर, ये आपका क्या हो गया 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। सो डियर तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।